Good evening, students. My name is Priyanka Gangar, and I will be taking a computer subject for this academic year. So, let's start with our first chapter. So, here we will be studying practical as well as with the theory also. So, first we will be looking at what exactly theory is, and according to that, we will be doing the practical part. So, our first chapter is creating HTML forms using Composer. So basically what HTML is now. HTML stands for Hypertext Markup Language, and why this is used. So it is a complete code package that allows the user to create web pages that contain both text and the graphics. Now through HTML हम लोग एक वेबसाइट भी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ या उसको मिला के ही टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स होंगे उसमें. All the web browsers are designed to understand and interpret this language. जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं वो सब के सब HTML पेज यूज करते हैं. What does hypertext markup language means now? Hypertext markup language का मतलब होता क्या है? तो hypertext refers to the combination of text and graphic images. जिस किसी में भी कोई भी वेबसाइट में टेक्स्ट या ग्राफिक हो या कोई लिंक हो जिस लिंक पे हम लोग क्लिक करें एंड वो लिंक दूसरी लिंक पे खुले, so that is known as hypertext. Now what does markup means? Markup means markups are special symbols or characters in our HTML files. जो special symbols and characters, for example !, ये सब special symbols हैं जो हम लोग HTML में यूज करते हैं. तो वो किस चीज के लिए यूज होता है? दैट इज नोन एज द मार्कअप. These markup indicates how the content will appear on the browser. ये मार्कअप ही बताते हैं कि कैसा कंटेंट ब्राउजर में शो होना चाहिए. The markup indicators are often called tags, and these tags, for example the tags which we are going to use in the practical part, तो वही tags बताएंगे कि जो हमारा ग्राफिक है, जो हमारी वेबसाइट है, वो कैसी दिखेगी. So they are known as tags. Then comes the language. Language specifies the code for formatting both the layout and the style within a text. लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि हमको कैसा लेआउट चाहिए, कैसा फॉन्ट उसका चाहिए, फॉन्ट की फैमिली कैसी होनी चाहिए. That will be coming in the language part. We will be looking at the format of an HTML. So here it is. So format of an HTML is always there is an HTML tag the top of that, and you are supposed to close with the HTML tag itself with a backslash also. Then उसके बाद आता है head, then a title, name of the page. Like यहाँ पे format.html है तो वहाँ पे name of the page आ जाएगा as in title. Then we are supposed to close the head the same way we have closed the title. Then comes the body, and we need to close the body also. Now in body we can write anything that we want to write. For example अगर हमको फॉर्म बनाना है, कोई टेबल बनाना है, कुछ भी पैराग्राफ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी ये सब लिखना है we will be writing in the body part. Looking at the how to use input element. Now how we will be using the input elements in the HTML. Okay, so I've created a normal form for you guys just to have a look. So this is a simple form that we are going to create it over here. That consists of the name, password, how the input tag is being useful in the HTML, and how the form is created. Okay. तो यहाँ पे पहले जैसे मैंने format बताया था कि HTML start होगा, then we will be having the head, then title, body. Okay, so we have given the form of the title. I mean the title has a form. So if we
share, if we see over here, see, the name of the title is as form.html. Okay, so here also you can see this is the name, the title of the form that is here. So back to the code. Then comes, अगर हमको कोई भी फॉर्म बनाना है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, तो उसके लिए हमको फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ेगा. सो ये रहा हमारा फॉर्म टैग. यहाँ पे हम लोगों ने h1 टैग यूज़ किया. नाउ h1 टैग क्या होता है? हेडर टैग होता है कि हमको जो हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की साइज़ है दैट वी वांट इन अ सबसे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, उसकी साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए. तो रादर देन गोइंग टू राइट लाइक फॉन्ट की साइज़ 15 रखो या 20 रखो, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली उसको h1 दे दिया. दैट इज़ द हेडर टैग. हेडर टैग 6 तरीके के होते हैं, h1 से लेके h6. h1 सबसे बड़ा होता है एंड h6 सबसे छोटा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने h1 यूज़ किया. B इज़ फॉर बोल्ड. जो भी हमारा टेक्स्ट है वो हमको अगर बोल्ड चाहिए तो हमने वो B रखा है. अगर हमको इटैलिक्स यानी थोड़ा स्लैंटिंग में भी रखना होता तो वी वुड बी राइटिंग I. ओके, एंड अगर अंडरलाइन के लिए वी विल बी यूजिंग U. देन कम्स द सेंटर. सेंटर यानी हमको हमारा जो भी टेक्स्ट है दैट वी वांट इन अ सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो वो चीज़ सेंटर में आ जाएगी. जो भी ये टैग्स हमने स्टार्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल h1, b एंड सेंटर, उन सबको भी हम बंद करेंगे. ओके, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू क्लोज द टैग्स. उसके बाद आता है br. br इज़ अ ब्रेक रो. लाइक हमको अगर दूसरे रो में जाना है, दूसरी लाइन में जाना है, दो चीज़ों के बीच में स्पेस चाहिए, तो उस चीज़ के लिए वी विल बी यूजिंग द br टैग. br टैग ऐसे कुछ टैग्स होते हैं जिनका सिर्फ ओपन कर सकते हैं बट दे डोंट हैव द क्लोजिंग फॉर्म, so br is one of them. Okay, so we will be doing certain things. For example, if I am writing h6 यहाँ पे and h6 यहाँ पे मैंने उसको सेव किया and I will be doing this change over here. So can you see the registration part, registration form, ये चीज़ छोटी हो गई. ठीक है, तो सेम हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे h1 के बदले we changed it to h6. देन कम्स द सेंटर टैग. हमको जो भी हम लोगों ने ये सब जो लिखा है, द नेम, पासवर्ड, जेंडर, हॉबीज, वॉट एवर थिंग्स, ये सब कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन. दैट्स वाई हम लोगों ने ये चीज़ एज अ मिडल में रखी, नॉट इन अ मिडल बट एज अ सेंटर ऑप्शन दे दिया कि हमको हर एक टैग के लिए सेंटर ऑप्शन ना देना पड़े. तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ही सेंटर लिख दिया सो दैट वो जितने भी हमारे टैग्स यूज हो रहे हैं वो सेंटर फॉर्म सब में आ जाए. सो सेंटर को हमने यहाँ स्टार्ट किया एंड देन वी क्लोज्ड इट ओवर हियर. देन फर्स्ट हमको नेम चाहिए. अब नेम में क्या है, इनपुट टाइप. हमको अगर कोई भी एक ब्लैंक फील्ड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिस इज अ ब्लैंक फील्ड. ओके, सो इसको क्या बोलेंगे हम, वी विल बी टेलिंग दिस एज अ इनपुट टाइप. ओके, तो हमेशा अगर हमको वो टेक्स्ट या ब्लैंक फील्ड चाहिए तो उसके लिए वी विल बी राइटिंग इनपुट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट. अगर हमको पासवर्ड लिखना है तो हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लिखेंगे. ठीक है, एंड द नेम मीन्स हमको कोई एक निक नेम, जैसे हम कैसे हमारे फ्रेंड्स को निक नेम देते हैं, तो वी आर सपोज टू गिव देम अ नेम ऑल्सो. सो मैंने यहाँ पे नेम को एज अ नेम ही दे दिया है एंड पासवर्ड को हमने एज अ पास दे दिया. नाउ व्हाट
दिस वैल्यू इक्वल्स टू फर्स्ट नेम मीन्स जो हमारा फील्ड बॉक्स है उसमें हमको चाहिए कि टाइप करने से पहले वहाँ पे फर्स्ट नेम एज अ लिखा हुआ है कि भाई ये फील्ड में यू आर सपोज टू राइट द फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी. वी विल सेव दिस एंड हम ये इसमें देखेंगे. सो कैन यू सी दिस, हम लोगों ने नेम रखा है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया. तो मैं जहाँ पे कट करके अगर मैं मेरा नाम लिखती हूँ तो इट विल बी कमिंग लाइक दिस. एंड हमने जैसे पासवर्ड लिखा, क्यों, ओके, so if I'm writing password, so it is actually coming in the form of password. ऐसा क्यों हो रहा है? Because मैंने यहाँ पे input type equals to password दिया है, that's why. Okay, so next coming up to the gender. अब gender, it is like a radio button. Now what is radio button is, these are called the radio buttons. Like you can see here male or a female, like we cannot have two gender at time. Okay, so we are supposed to select one gender, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा. ठीक है, तो इस चीज को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो. कंप्यूटर की लैंग्वेज में दैट सर्कल्स मीन्स अ रेडियो. ओके, हमने नेम दे दिया एज अ जेंडर. मैंने बोला नाम कुछ भी दे सकते हो. सो इट इज़ बेटर टू गिव अ नेम जो कि यू नो सेम नाम हो कि हम लोग उसको रेफर कर सकें. इट्स बेटर टू गिव अ सिमिलर नेम दैट यू कैन यू नो याद रख सको तुम लोग. वैल्यू एज अ मेल, अब देना पड़ेगा मेल बिकॉज हमको पता चले दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट होगी. दोनों को हमको सिलेक्ट नहीं करना है, मेल को भी सिलेक्ट नहीं करना है, ना ही फीमेल को सिलेक्ट करना है. वैल्यू इक्वल्स टू मेल दे दिया एंड उसके बाद वी आर सपोज टू राइट अ मेल. दिस मेल इज लाइक कमिंग यहाँ पे, ये वाला मेल जो हमने लिखा है वो वहां पे आ रहा है. ओके, सेम वे फॉर द फीमेल we have done the same thing, like input type equals to radio, name equals to gender, value equals to, sorry यहाँ पे female आएगा, female, and this female. Now why two BRs? Because if I'm writing only one BR and saving this and new share में जाके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो देखो यहाँ पे जो स्पेस थी वो रिमूव हो गई. कैन यू सी दिस? सो BR is like a proper layout of a page कि अगर पेज प्रॉपर हमको चाहिए तो we can write that. Now we will be going with the next thing, that is the checkbox. चेकबॉक्स क्या है? द हॉबीज. एक साथ मल्टीपल चेकबॉक्स यूज हो सकते हैं. ओके, सो हॉबीज आर लाइक मेरी अगर प्लेइंग पबजी भी है एंड डांसिंग भी है, रीडिंग भी है, सो आई विल बी चेकिंग ऑल ऑफ दिस. ठीक है, एक भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो जैसे हमने जेंडर के लिए रेडियो यूज़ किया तो हॉबीज़ के लिए वी विल बी यूजिंग दिस चेक बॉक्स. ओके, एंड द नेम एज हॉबीज़, वैल्यू इक्वल्स टू प्लेइंग, सब सेम ही है. The difference is only the values that you are giving is different. And playing PUBG is the same for the hobbies of reading, it's here, and dancing के लिए ये. वापस हमने BR दे दिए for the break row. Okay, then comes our city, गांधीधाम, मुंबई और दिल्ली. फॉर एग्जाम्पल मेरे को मुंबई सेलेक्ट करना है तो ये चीज़ हुई कैसे? ओके, तो ये चीज़ हुई ऐसे, मैंने सिटी तो ऑप्शन दे दिया. अब सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू सिटी. हमको अगर ड्रॉप डाउन फील्ड चाहिए, जैसे अभी हमने देखा गांधीधाम, मुंबई, देन दिल्ली लिखा हुआ आया था, तो वो ऑप्शंस कैसे मिले हमको? तो हमने एक सिलेक्ट का ऑप्शन डाला था.
तो दैट इज नोन एज सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू सिटी। सिटी के सिवा तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, इट इज योर चॉइस। ओके, अब मेरे को ऑप्शंस डालना है। वी कैन गिव एज मेनी ऑप्शंस, जितने ऑप्शंस चाहिए हम दे सकते हैं। ओके, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू गांधीधाम। हमने फर्स्ट वैल्यू क्या रख दी, गांधीधाम रख दी। तो इसका नाम यहाँ पे जो हमको डिस्प्ले शो कर रहा है, दिस नेम इज कमिंग हियर, ये रहा गांधीधाम। ओके, सेम फॉर मुंबई एंड दिल्ली। ओके, एंड जैसे हमने सिलेक्ट ये टैग खोला था, वी आर सपोज टू क्लोज द सिलेक्ट टैग ऑल्सो, लाइक विद द front slash. Okay, then again br as a break room मिल गया। Then comes the text area like this. If you I want to write my address like I live in Gandhidham, and yeah, that's it. So this is the text area that I want to write the comments, I need to write my address. तो ये सब चीज़ें मैं कहाँ से लिखूँगी या कैसे लिखूँगी? So I do have a name called tag as a text area, this का नाम है, and name is like comments दे दो, address दे दो, whatever your choice. The new things in this is rows and columns. Rows यानी these 1 2 3 4 and columns is 1 2 3 4 5 6. Okay, तो इसमें मेरे को 4 rows चाहिए and 20 columns. Okay, and जो अंदर मेरे को लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, like if I just refresh this page, so here it is coming, write your address. तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ से, that I've written over here, write your address here. ठीक है, एंड देन मैंने टेक्स्ट एरिया को भी बंद कर दिया। ओके, नाउ वी आर हैविंग द टू पैटर्न्स, दैट इज सबमिट एंड रीसेट। जब भी मैं मेरा फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्म में कुछ गड़बड़ कर दी, मेरे को लग रहा है कि मेरे को सबमिट नहीं करना है, आई कैन क्लिक ऑन द रीसेट बटन एंड इट विल रीसेट, यानी कुछ भी नहीं रहेगा, जितना भी डेटा मैंने लिखा था वो सब चला जाएगा। एंड सबमिट के क्लिक इवेंट पे अगर हमने कोई लिंक दी है तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ओके, तो हाउ वी विल क्रिएट दिस सबमिट एंड रीसेट का बटन? सो इट इज़ वेरी सिंपल, सेम इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। क्यों? क्योंकि हमको सबमिट का एक बटन बनाना है, तो वी विल बी गिविंग सबमिट एंड द वैल्यू फॉर दैट इज सबमिट। ओके, सेम फॉर द इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट एंड वैल्यू इक्वल्स टू रीसेट। देन br, एंड जैसे हमने सेंटर टैग को ओपन किया था वैसे हमने क्लोज कर दिया, फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी एंड देन HTML. So in this way our normal registration form is being created, but ये फॉर्म इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक अच्छा फॉर्म बनाने का ट्राई करेंगे। अब वो कैसे होगा, हम पीछे बैकग्राउंड कलर लगाते हैं उसको, ये जो सब थोड़ा नेम पीछे है, पासवर्ड थोड़ा आगे है, जेंडर अंदर सॉरी अंदर है, तो ये सब चीज़ें क्या है, दे आर नॉट इन अ फॉर्मेट, पूरा द लेआउट इज नॉट वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, वी विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉपर फॉर्म